સિંગલોડ સાહેબ હજુ દેખાતા નથી. આવશે, વાંધો નહીં. વાત થઈ ગઈ છે ને એની સાથે લાવશે. ઓકે, રેકોર્ડિંગ શરૂ કરી દીધું છે. રોહિત લોધની આજની આ શનિવારની ઈ મિટિંગમાં સર્વે ઉપસ્થિત સભ્યોને હાર્દિક વેલકમ. અને પ્રોગ્રામની શરૂઆત આપણે યુનિવર્સલ ઇન્વોકેશનથી કરીશું. અમારી રોહિત લોધના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બ્રધર હર્ષવર્ધન શેઠ સરને વિનંતી કરું કે આપણને સર્વને યુનિવર્સલ ઇન્વોકેશન કરાવે. શેઠ સર. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May he feel himself as one with One thee. with thee. know he is also one with every other. May he Oh, he is also one with also every other. one with every other. Shanti. Shanti. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે 1 મિનિટ સાયલેન્ટ મેડિટેશન કરીશું આપણે. પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ આપણે. ફરીથી વન્સ અગેન સર્વે ઉપસ્થિત સભ્યોને રોહિત લોધના આજના આ ઈ મિટિંગના પ્લેટફોર્મ ઉપર અત્રે હું સર્વને આવકારું છું. મુખ્ય સ્પીકર સિવાય બાકીના સભ્યોને વિનંતી કરીશ કે પોતાના માઇકને મ્યુટ રાખે, જેથી કરીને આજના પ્રવચનનો લાભ આપણે બહુ વિશેષ સારી રીતે લઈ શકીએ. થેન્ક યુ. આજના આપણા મુખ્ય વક્તા છે બરોડા લોજ સાથે સંકળાયેલા ડૉક્ટર કિરણભાઈ શિંગલોત સાહેબ, જેમને અત્રે હું અમારી રોહિત લોજના તમામ સભ્યો વતી હું અત્રે આવકારું છું. અને સરનો વિષય છે મન અને માંદગી સાથેનો સંબંધ, જે લગભગ દર મહિને આપણને એમના જ્ઞાનનો લાભ આપે છે. તો વધારે સમય વ્યતીત જ ના કરતા વધુ ને વધુ સરને અમે સાંભળવા માંગીએ છીએ. તો સર, અમને મન અને માંદગી વિશે આગળની જે છે જર્ની એ અમને કરાવો અને તમારા જ્ઞાનનો સર્વે ઉપસ્થિત સભ્યોને લાભ આપો. નમસ્કાર સૌને. મારો અવાજ સંભળાય છે કે બધાને? અવાજ સંભળાય છે સર, પણ પીપીટીમાં જ મને લાગે છે બહુ બધું, આઈ થિંક એક વખત ક્લોઝ કરીને હા, ફરીથી હું કરો. ફરી બંધ કરીને ફરી હા ચાલુ હા કરું છું, હા હા, કારણ કે કંઈક ગોટાળો થાય હા, કંઈક એક્ઝેક્ટલી. લાગ્યું. ઓકે ઓકે, હા. તો પીપીટી બરાબર દેખાય છે ને? એટલું એકદમ જોઈ હા લેજો. સર, યસ, પરફેક્ટ. ઓકે ઓકે. તો પુનરાવર્તન દોષ ટાળ્યા વગર આજે હું કેટલીક બીમારીઓના ઉલ્લેખ કરવા માંગુ છું કે જેના માટે આપણા જીવનના અનુભવો, વીતેલા જીવનના અનુભવો, આપણું બાળપણ, આપણી કિશોરાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વ્યવસાયિક જીવન, સામાજિક જીવન, આપણા સંબંધોનું ક્ષેત્ર, આ બધું શી રીતે અસર કરે છે. આપણે સાજા રહી શકીએ અથવા તો બીમાર રહીએ.
હું ખાસ કરીને તીવ્ર બીમારીઓ એટલે કે એક્યુટ ઇલનેસીસ, મેલેરિયા થાય, એકાદ દિવસ શરદી ખાંસી થાય, કોઈ વાર એકાદ વાર બ્લડ પ્રેશરમાં ઉછાળો આવે, કોઈ વાર માથું દુખી આવે, આવું ટૂંકા ગાળાની બીમારીઓનો ઉલ્લેખ કરવા નથી માંગતો. પણ ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં કેટલીક બહુ જ સામાન્ય બીમારીઓ જોવા મળે છે જેનાથી વ્યક્તિ વર્ષોના વર્ષ, ઘણું કરીને એના જીવનનું આખું ઉત્તરાર્ધ એટલે કે 40 કે 45 વર્ષની ઉંમર પછી મરતા સુધી આ બીમારીઓથી મુક્તિ મેળવી શકતો નથી. તો આવા કેટલાક રોગો અને એની પાછળના કારણો. तो मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ा हिंदी में. उम्मीद करता हूँ कि कुछ हिंदी भाषी लोग हैं जिनको भी समझने में थोड़ी सरलता रहेगी. तो काफी बीमारियों में काफी सारे कारण होते हैं. वारसागत कारण, वातावरणीय कारण, आपका आहार, आपकी दिनचर्या, आपकी रात की नींद, आपकी चिंताएं. उसके उपरांत एक और कारण जिम्मेवार है जिसका नाम है मेटाफिजिकल कॉज, तात्विक कारण. तो जैसे एक उदाहरण मैं दे चुका हूं कि आप जिंदगी के अनुभवों से गुजरते गुजरते एक घने जंगल से पसार होते हो, एक संकुचित मार्ग से पसार होते हो. तो अगर आप बहुत संकुचित मार्ग से अपनी गाड़ी को लेके बाहर निकलेंगे तो गाड़ी को खौंच खरोच होगी, आपके शरीर को घाव इजाएं होगी. ऐसा ही कुछ होता है हमारे मानसिक तंत्र पर. जीवन के अनुभव बहुत सारी असर छोड़ते हैं. हमारी लागणी तंत्र में बहुत सारा बदलाव, उछाल आता है, जिसे आप कहते हो इमोशंस. तो ये इमोशंस कई सारी बीमारियों का कारण है. आज इसमें से प्रमुख बीमारियों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा. जैसे कि अगर आपकी नकारात्मक मानसिकता बनी तो आप स्वस्थ जीवन जी नहीं सकते. तो पहले देखेंगे कुछ सर्वसामान्य सिम्टम्स, चिन्ह. जैसे कि आपको जुकाम होता है, नाक बहने लगता है, कब्ज की तकलीफ है, हताशा कई बार हो आती है. हताशा 5-10 दिन की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है. कई लोग पूरा का पूरा जीवन डिप्रेशन में बिता देते हैं. उल्टियों की तकलीफ है, सर दर्द की तकलीफ है, आपको बुखार हो उठता है, आपको संधिवात, शरीर के जोड़ों में, स्नायुओं में दुखावा होता है. एक सर्वसामान्य तकलीफ मैं हमेशा देखता हूं वो है गर्दन की अकड़न, नेक स्टिफनेस. तो डॉक्टरों के द्वारा कारण बताया जाता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, या रूमेटिज्म से पीड़ित कई महिलाओं को कहा जाता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. फिर ब्लड टेस्ट कराया जाता है, उसमें आरए फैक्टर ज्यादा भी आता है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर होता है एक नाम का परीक्षण है जो बहुत हाई आने लगता है. आप अनिद्रा से पीड़ित है, आपको कमर दर्द है, आप कई सारी प्रकार की एलर्जियों से पीड़ित है. यह महीना चल रहा है फरवरी और मार्च, वसंत ऋतु, मतलब कि एलर्जियों का महीना है. तो एलर्जी वातावरण से तो होती ही है, लेकिन एलर्जी का एक और कारण होता है आपको कुछ व्यक्ति का एलर्जी है, कुछ व्यक्ति से आप पीड़ित हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे पर सवार है. खास करके मैं संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहूंगा, महिलाओं में कुछ समस्याएं पाई जाती है मासिक संबंधित. और इस समय पिछले 30 सालों में लगभग 90 के दशक के बाद, इसके पहले कभी ये सुनने को भी नहीं मिलती थी कि कई महिलाओं को मेनोपॉज की तकलीफ है, कमर दर्द होता है, डिप्रेशन होता है, रोना आता है,
गर्मी की झड़ी छूटती है, बहुत सारे सिम्टम्स के लिए कारण बता दिया जाता है, मेनोपॉज के रिलेटेड तकलीफ है। तो सीधा साधा कारण समझाया जाता है, इलाज किया जाता है, व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। तो ऐसी कुछ पहले तो सिम्टम्स देखेंगे, जैसे कि मैं सभी का उल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर्दी क्यों होती है, हमें नाक क्यों बहने लगता है, तो आप कभी अवलोकन करेंगे कि आप जब काम के बोझ से लदे हुए हो, हफ्तों के हफ्ते, महीनों के महीने, घर में शादी है, आपके ऊपर जिम्मेवारी का पहाड़ है, आप अपने व्यवसाय के स्थान पर 4-6 महीने से बहुत सारा बोझ उठाते रहे हो, अपने परीक्षाओं की तैयारी करनी थी, तो 3-4 महीने से आप ठीक से सो नहीं पाए, बहुत हो गया, अभी बहुत थक चुका मैं, अब ये पूरा हो तो अच्छा, मेरे पर से बोझ उतरे तो अच्छा, परीक्षा खत्म हो जाए तो अच्छा। जब ऐसा बोलते हो, टू मच गोइंग ऑन एट वंस, तो जब जिम्मेवारियों से आप अतिशय पीड़ित होते हो, बोझिल होते हो, तो ऐसा होता है कि मन में एक कंफ्यूजन बसने लगता है, आप स्पष्टता से सो नहीं पा समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए मुझे, कब सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, आराम कैसे करूंगा, मनोरंजन का क्या ध्यान कैसे रखूंगा, खुद का ध्यान कैसे रखूंगा। तो एक प्रकार का कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप इतना सारा जिम्मेवारी के बोझ से दब चुके हो। तो परीक्षा, घर में शादी का मामला, व्यवसाय में काम का बोझ आपको कई बार बहुत लंबे अरसे तक चलता है, तो आपका रोग प्रतिकार तंत्र कमजोर बन जाता है। आपकी खून में कुछ खास सैनिक कोश है, जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स, लसिका कोश। तो पाया जाता है कि जो लोग बहुत कामों के बोझ से, चिंताओं के बोझ से सवार होते हैं, उनमें ये लिम्फोसाइट काउंट कम हो जाता है, जो वायरस के सामने आपको रक्षण देता है। तो कॉमन कोल्ड के वायरस का मुकाबला करने की आपकी क्षमता नहीं रहती, तब आपको सर्दी हो सकती है। तो आपको चाहिए कि परीक्षा की तैयारी जरूर करो, शादी की तैयारी जरूर करो, काम का बोझ जरूर उठाओ, लेकिन बीच बीच थोड़ा आराम करिए। काम आराम, काम आराम। जब ये श्रृंखला तोड़ेंगे, लगातार काम करेंगे, तो आपका दिमाग कंफ्यूजन से भर जाएगा। ऐसे में कॉमन कोल्ड हो सकता है। कब्ज की बीमारी दो तरीके से समझाना चाहूंगा। एक तो पूरा भारत कल्चरली कब्जे से पीड़ित माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा गया कि सुबह में उठकर के आपको मलत्याग होना ही चाहिए। प्रभाते कर कर मण दर्शनम, ऐसा एक सूत्र दिया गया। अगर आपको सुबह में मलत्याग नहीं हुआ, और कोई जरूरी भी नहीं, वो सुबह में हो सकता है, रात को हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सुबह में नहीं हुआ, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिवस पूरा खराब जाएगा। तो भारत सांस्कृतिक रूप से कब्ज से की बीमारी से पीड़ित देश माना जाता है। तो आप कोई ना कोई इलाज करते हो, कायम चूर्ण लेते हो, इसका फिर नशा का हो जाता है, आपको इसकी आदत बन जाती है। तो कब्ज की बीमारी, एक तो जो मान्यता आपने अपने दिमाग में वश कर ली, उससे होता है। दूसरा, कई पुराने गंदे विचार हम छोड़ नहीं पाते, जैसे कि जातीयता संबंधित विचार आपके दिमाग में निवास कर लिए, तो उसको निकाल नहीं पाओगे, उसको दूर नहीं कर पाओगे। तो सड़े हुए, वासी, पुराने गंदे विचार और भूतकाल में लगे रहना, भूतकाल को भूलना नहीं, भूतकाल से बाहर नहीं निकलना, ऐसे लोगों को कब्ज की बीमारी हो जाती है। डिप्रेशन एक सामान्य तकलीफ है इस समय, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो डिप्रेशन का मतलब है कि आप हताशा का अनुभव कर रहे हो, बेसहारा अनुभव करते हो, बेसहायता अनुभव करते हो। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होता है, मेरी कुछ चलती नहीं, और आपके दिमाग में गुस्सा भर आता है।
अब आप अपने आप को कोसने लगते हो कि ये गुस्सा मेरा अधिकार का बस नहीं, अधिकार में नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं लाचार हूँ गुस्सा निकल आता है, लेकिन उस गुस्से को निकाल नहीं पाता हूँ। दिमाग में ये गुस्सा रहता है जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तो ऐसे सोचने वाले लोगों में डिप्रेशन की तकलीफ पाई जाती है। सर दर्द उन व्यक्तियों में पाया जाता है जो अपना खुद का टीका बहुत करते रहते हैं। तो माता पिता ने, खास करके पिता ने बचपन में एक आदत डाली, तुम ठीक नहीं हो, तुमसे कोई काम ठीक से होता नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम छोड़ो, तुम अपूर्ण हो, तुम भूल बहुत करते हो, और फिर ये नजरिया हम स्वीकार कर लेते हैं। तो जब मैच्योर पुख्त बड़े हो जाते हैं तो ये नजरिया छोड़ते नहीं, खुद का ही टीका करते रहते, मेरे से कोई काम ठीक से होता नहीं और मैं डरता रहता हूँ और मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। ऐसा सोचने वाले लोगों को सरदर्द बहुत होने लगता है। जो परिवर्तन का स्वीकार नहीं करते उनको उल्टी की तकलीफ होती है। जैसे कि माँ गर्भवती बनी, पेट में बच्चा पल रहा है, लेकिन माँ को लग रहा है कि इस समय बच्चा नहीं होना चाहिए था, मुझे गर्भधारिणी नहीं बनना चाहिए था, ये गलत समय है। तो ऐसे में बच्चे का स्वीकार नहीं किया जाता। नई जगह, नया घर, नए रिश्ते, शादी के बाद, और नया वातावरण, जीवन में बदलाव, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे अथवा आप कुछ नए विचारों का अस्वीकार करोगे और उग्रता से उसका विरोध करोगे, जो आपकी स्थापित विचारधारा है उससे अगर आप कुछ अलग विचारधारा बताई जाती है तो उग्र प्रतिरोध करते हो, तो ऐसे में आपको उल्टी होने लगती है। तो आप कुछ निकालना चाहते हो, ऐसे विचारों को आप अपने दिमाग में जाने देना नहीं चाहते। नेगेटिवनेस को आप देखिए कि जो लोग जड़ मानस के हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सच्चा हूं, मेरी बातों में तथ्य है, तुम्हारी बात झूठी है, तुम्हारी बात का, तुम्हारी दलीलों का मैं स्वीकार नहीं करता, जो मैं मानता हूं वही सही है। इतने स्टबॉर्न, इतने इनफ्लेक्सिबल, इतने जड़ मानसिकता का आप पर जो असर होता है, इसमें नेगेटिवनेस होने लगती है। अनिद्रा का बीमारी, आप जीवन ने हमारे जीने का प्रबंध किया हुआ है, खाना मिले, सलामती मिले, प्यार मिले, आपका जीवन पले। तो अब देखिए कि कुदरत में कितने सारे जीव पल रहे हैं, ये कल की नहीं सोचते। आज खाना मिला तो कल की सोचते नहीं। आदिवासियों को देखें, ये अनिद्रा से कभी भी पीड़ित नहीं होते। कहीं भी आप बड़ोदरा के रास्ते पर देखेंगे, फुटपाथ पर देखेंगे तो कहीं भी सो जाएंगे गहरी नींद में। हम मशरूम तलाई में नहीं सो पाते, एयर कंडीशनर में नहीं सो पाते, कारण कि हम हमेशा सोचते रहते हैं मेरा कल कैसा बीतेगा। तो अनिश्चितता से पीड़ित, डर से पीड़ित और गुनाहितता की भावनाएं रखने वाले लोगों में अनिद्रा पाई जाती है। महिलाओं में पाई जाती है बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी में और भी बोल चुका, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, आपको मासिक कम आना, बहुत ज्यादा आना, बहुत ज्यादा पीड़ाएं होना। तो ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और मेनोपॉजल इश्यूज, 50 की उम्र के बाद आपका मासिक रुक जाना, मासिक का अटकाव जिसको कहते हो, रजो निवृत्ति जिसे कहते हो। तो इन सब समस्याओं का कारण है कि अपने स्त्रीत्व को, नारीत्व को, मैं स्त्रीत्व शब्द भी उपयोग नहीं करूंगा, नारीत्व का स्वीकार करने में आप झिझक रहे हो, क्योंकि सिखाया जाता है कि समाज नर प्रधान है, पुरुष प्रधान है, पुरुषों की चलती है। घर में भाई का कहा माना जाता है, बहन को धुतकारा जाता है, इसकी अवगणना कही जाती है, उसके सपने तोड़े जाते हैं, उसको पिता के दबाव में कहीं भी शादी कर देनी पड़ती है,
तो लड़की की चलती नहीं, लड़के का सब कुछ चलता है। तो मैं नारी होने के कारण, लड़की होने के कारण, स्त्री होने के कारण अपाहिज हूँ, मेरा नारीत्व मुझे पसंद नहीं। तो फिर इसके साथ जुड़ी हुई गिल्ट फीलिंग है, जैसे कि मासिक से जुड़ी गई है गिल्ट फीलिंग। आप कहीं छू नहीं पाएंगे, मंदिर जा नहीं पाएंगे, पानी भर नहीं पाएंगे, अचार निकाल नहीं पाएंगे, धार्मिक प्रसंगों में आप उपस्थित रह नहीं पाएंगे। तो समाज ने ये झूठा सा तर्क देकर के कि महिलाओं को 4 दिवस के दरमियान आराम देना है, तो 4 दिन उनको एक कोने में बैठा दो। तो ये तो अवगणना की जाती है, अवमान्यता की जाती है। तो ऐसी महिलाओं को जब मासिक स्राव होता है तो गिल्ट होने लगता है, अपराधी भाव होने लगता है, ये डरने लगती है और ये हमेशा मानती है कि मेरे गुप्त अंग और मेरा मासिक गंदी चीज है, पापी चीज है। तो ऐसे मानने वाले लोगों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और जैसे कि मैं कह रहा था फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग अलग प्रकार की इंक्लूडिंग ब्रेस्ट प्रॉब्लम होती है। कैंसर भी, गर्भाशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, पेड़ों के भागों का कैंसर, स्तन का कैंसर ऐसी महिलाओं में काफी पाया जाता है। मेनोपॉज का मतलब तो आप समझते हो कि 50 साल के बाद अब आपकी कोई कीमत न रही, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो चुके, आप अपना आकर्षण, शारीरिक आकर्षण गंवा दिए, तो अब अपने पति भी आपको चाहेंगे नहीं, बच्चे भी चाहेंगे नहीं, वो स्वतंत्र हो गए, उनके जीवन साथी हो जाएंगे या अपनी राह पड़ेंगे, तो अब आपको कोई चाहता नहीं। तो आपको डर सा लगने लगता है कि अब बुढ़ापा आया, अब मेरी झुर्रियां पड़ेगी, बाल झड़ेंगे, श्वेत हो जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएंगे, अब मैं बूढ़ी बन चुकी। तो खुद का ही तिरस्कार करने लगती है। ऐसे लोगों को मेनोपॉज की इश्यूज होने लगती है। लोअर बैक एक, जैसे कि कमर दर्द से कई लोग पीड़ित है, डिस्क लीजन, गादी घिस जाना अथवा तो हड्डियों में कमजोरी के कारण कमर दर्द होने लगता है। वो उन लोगों को होता है जो लोग हमेशा मानते हैं कि मुझे मेरा आर्थिक भविष्य क्या रहेगा, कल अगर मैं दरिद्र बन गया तो मेरे सभी पैसे, मेरी सभी बचत सब बेकार बन गए तो मैं बंगले से रास्ते पर आ जाऊंगा। ऐसा जिसको डर है तो ध्यान में रखिए कि शादी, अर्थ व्यवहार ये ना कुदरत ने बनाए ना भगवान ने बनाए। भगवान ने या कुदरत ने तो केवल हमारे खाने का प्रबंध किया, इन्होंने बारिश का प्रबंध किया। आपके लिए मकान कुदरत नहीं बनाती, आश्रय आपको खुद खोजना होगा और वो क्षणिक आश्रय है। आपको एक रात गुजारनी है, दूसरे रात को पेड़ पर रहना है, दूसरे दिन अपनी जीवन कहीं और ले जाना है। जबकि हम स्थायी मकान बनाने लगते हैं, हम पैसा डिपॉजिट करने लगते हैं, सोना खरीदने लगते हैं, ये सोचकर कि मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। तो यही दर्द जो है वो बैकएक का कारण बनता है। तो बैकएक की बीमारी कुछ व्यवसायों में ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि जो शेयर सपाटे में, शेयर बाजार में ज्यादा कार्यरत है, ऐसे लोगों में, जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। ऐसी 5-7 बीमारियों का भी मैं वर्णन संक्षिप्त में करता हूं। तो जैसे कि इस समय खास बीमारियां हैं हमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटस, और एक और बीमारी है कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसका उल्लेख, हार्ट अटैक का उल्लेख मैं बाद में करता हूं। तो हाई ब्लड प्रेशर उन व्यक्तियों को ज्यादा होने का संभव है जो जीवन भर किसी लागणी हो की विषमता से पीड़ित रहे। मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, किसी ने मुझे सुना नहीं, किसी का मुझे सहारा नहीं मिला, किसी ने मेरे हाथ पर, मस्तक पर हाथ नहीं रखा, मैं अपने आप जूझता रहा, जीवन परिस्थितियों से रास्ता निकालता रहा, कोई मेरा न रहा।
ऐसा जो मानते हैं इन लोगों को हाइपरटेंशन होता है। डायबिटीज का संबंध है जीवन की कड़वाहट से। तो मेरे दिन बहुत खराब भी थे, कड़वाहट में इकट्ठी करता रहा, और अगर मैं कुछ नाजुक निर्णय नहीं लेता तो मेरा जीवन अलग होता। जैसे कि शादी का निर्णय, आदमी सोचता है कि ये निर्णय मेरा गलत था। पढ़ने का और कारकिर्दी का निर्णय, मैंने ये निर्णय किया, इसके बदले में ये निर्णय करता या करती तो मेरा जीवन कुछ अलग होता। मैं खुद ही मेरी जीवन की बेहाली के लिए जिम्मेवार हूं, और इसके कारण ये विषाद में रहते हैं, डीप सॉरो। इनके जीवन में हमेशा कड़वाहट सी व्याप्त रहती है। उन लोगों को डायबिटीज होता है। आपको अथेरोस्क्लेरोसिस का पता होगा। आपकी हृदय धमनी, मस्तिष्क धमनी, शरीर की धमनियां सभी संकुचित बन जाती है। इसमें कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की क्षार बाहर जम जाते हैं। इसके कारण आपको हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस हो जाता है, आपकी पक्की नसें खराब हो जाती है। तो इस बीमारी को कहा जाता है अथेरोस्क्लेरोसिस। का मतलब है खून की नसों में, आपकी खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की क्षार जमना। इसकी दुष्परिणाम रूप आप देखेंगे हार्ट अटैक और पैरालिसिस। तो ये उन लोगों में पाया जाता है जो जीवन में कभी आनंद मनाते ही नहीं, काम ही काम, जिम्मेवारी ही जिम्मेवारी, कमाना ही कमाना, बस आर्थिक जीवन बनाते रहना है और कुछ नहीं सोचते वो लोग। तो अपने जीवन में मतलब टीवी देखना, पिक्चर देखना, पिकनिक करना, आनंद मनोरंजन, लोगों से मिलना, बर्थडे मनाना, कोई भी खुशी नहीं मनाते। क्योंकि खुशी अगर करने जाऊंगा, मनाने जाऊंगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो, मेरा समय बर्बाद होगा, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो आप खरगोश की कहानी और कछुए की कहानी से परिचित हो। खरगोश ये सोच करके कि मुझे नींद का कोई अवकाश नहीं, क्योंकि मैं नींद में सो जाऊंगा तो पीछे पड़ जाऊंगा, करते हुए दौड़ता रहा, थकता रहा और अंत में पीछे पड़ गया। कुछ ऐसा होता है उन लोगों में जो लोग भौतिकवादी जीवन जीते हैं, बहुत सारा भौतिक सुख पाना चाहते हैं, बहुत धन कमाना चाहते हैं, सत्ता, स्थान, मकान, गाड़ी, सोना, पैसा इत्यादि कमाना चाहते हैं। ये अपने जीवन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता, मजे इत्यादि का सब कुछ भोग दे देते हैं। उन लोगों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। फ्रैक्चर की बात करूं थोड़ी, तो हड्डियां जो है ये अपने शरीर की सबसे सख्त पेशी है। अगर मुझे निकाल करके देते आप तो उसका मैं उपयोग करता किसी को मारने के लिए। तो एक छुपा सा रोष रहता है मेरे दिमाग में, जो आपके स्थान में, जीवन में सत्ता स्थान पर है, आपका बॉस, आपके पिता, आपके पति, आपके दादा, तो कई बार इनकी ही चलती है, आपका कुछ चलता नहीं। तो मन ही मन आप सोचते हो कि मैं विद्रोह करूं, और ये भावना आपको फ्रैक्चर का भोग बना सकती है। दूसरा एक बीमारी बहुत सामान्य है जो है घुटनों की बीमारियां, आर्थराइटिस। तो ये जिनका अहंकार और अभिमान अत्यंत अक्कड़ है, उन लोगों को होने का देखा जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये नमते नहीं, बस मैं क्यों नमूं, मैं क्यों इस व्यक्ति की मान्यता को स्वीकार करूं, मांग को स्वीकार करूं। बस अक्कड़ रहो और घुटनों की क्षमता को गंवाओ। ओबेसिटी आप देखिए, स्थूलता, वजन बहुत ज्यादा होना, ये एक डर सा है अपने जीवन में, असलामती की भावना है। मैं अपने जीवन में कुछ पूरी नहीं कर पाया, कुछ सिद्धि हासिल नहीं कर पाया, मैं अधूरा हूं, अपूर्ण हूं, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं लोगों का प्यार पाने का पात्र नहीं हूं। ऐसे लोगों में ये हमेशा चाहते हैं कि लोग मुझे सराहना करें, मेरी मान्यता करें, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखे, और ये मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि मैं अच्छा आदमी नहीं हूं।
मैं अच्छा दिखता नहीं, मेरे में कमजोरी है, मेरी क्षमता कम है। तो ऐसे में जो एक डर और असलामती दिमाग में भरी रहती है, उसको पूरी करने के लिए आप अति आहार करते हो, और आहार के माध्यम से आप फुलफिलमेंट, सिद्धियों की अनुभूति करना चाहते हो। उन लोगों में ओबेसिटी पाई जाती है। बच्चों में मैं कई बार देखता हूँ, अथवा तो ऐसा है कि कहते हुए मैं थोड़ा संकोच भी अनुभव कर रहा हूँ, ऐसे पुरुषों में पाया जाता है माइग्रेन हेडेक, कि जिनको थोड़ा सेक्सुअल फियर रहता है, क्योंकि पत्नी का मरण हुआ, पत्नी घर छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, अकेले बन गए, विधुर बन गए, कि शादी नहीं कर पाए, तो अपना जातीय आनंद प्राप्त करने के वो लिए वो लोग मास्टरबेशन करेंगे, और इससे फिर थोड़ा गिल्ट फीलिंग करेंगे। तो वो गिल्ट हेडेक का कारण कई बार बनता है, ऐसा मेरे अनुभव में रहा। ऐसा एक बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्रंथि की कमजोरी, जो 45 की उम्र के बाद महिलाओं में पाई जाती है, और थायराइड कम काम करने लगता है। आपको थायरोक्सिन का गोली हमेशा लेना पड़ता है, टीएसएच की मात्रा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये महिलाओं में क्यों होती है? क्योंकि वो जो करना चाहती थी अपने जीवन में, वो कभी कर नहीं पाई, क्योंकि पिता ने, कुटुंब ने, पति ने। तो जैसे कि आज ही मैं किसी महिला से बात कर रहा था कि वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, और क्योंकि शादी करके आई, पढ़ी लिखी थी, एमए बीएड किया था, बहुत सारी सुशिक्षित महिला, नौकरी करना चाहती थी, कुटुंब ने करने नहीं दिया कि महिला हो तो खाना घर संभालेगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित है, क्योंकि इनकी रचनात्मक शक्ति दबा दी गई, ये हाथी की पात्र बनी। और सर्वशक्तिमान एक महिला, आप बच्चा और खाना, इस दोनों में जब कैद कर लेते हो, तो इसका रचनात्मक शक्तियों का आविर्भाव नहीं जब कर पाती, तब ये हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित होने लगती है। तो बच्चों को पढ़ाती रही, बच्चों को मैं मदद करती रही, पति को मैं इनके व्यवसाय के लिए सब काम करती रही, इनका सब ख्याल रखती रही, ध्यान रखती रही। मेरी बारी कब आएगी, मेरा ध्यान लोग कब रखेंगे? ये जब सोचते हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म। अंतिम एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बीमारियों का हमारे व्यक्तित्व से भी संबंध है। तो जैसे कि डिप्रेशन प्रोन पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का मतलब है कि आपका सोचने का तरीका, लागनियों का अनुभव करने का तरीका और वर्तन का तरीका एक समान है, स्टीरियोटाइपिक, टिपिकल। जैसे कहता हूं कि कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से से चलता है, उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है, अंगों में गुस्सा दिखाई देता है, तो आप कहेंगे वो शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है, उसका कोई भरोसा मत करो, वो कभी भी गुस्सा हो जाएगी, आंख बबूला हो जाएगी। तो उसका पर्सनालिटी एंग्री है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा। तो आपकी सोचने की परंपरा, आपकी अनुभव करने की लागनियों के परंपरा और आपका वर्तन व्यवहार जो बचपन से आपने सीखा, ये आपके स्वास्थ्य का कारण। आप अपने जीवन में बहुत सारा पाते हो, गंवाते हो, सिद्धियां प्राप्त करते हो, लेकिन सिद्धियों को प्राप्त करने के उपरांत ये आपकी कुछ कमजोरियों का भी कारण बन सकता है। जैसे कि अतिशय परिश्रम करने की मेरी क्षमता, वो मेरे जीवन में बहुत सारी सिद्धियां लेके आई, लेकिन मैं अपने आनंद, मनोरंजन, काम, आराम, नींद का हमेशा उपेक्षा करता रहा, तो ये मेरी कमजोरी भी बनी। तो आपका पर्सनालिटी कैसा है? बहुत सारी पर्सनालिटी का अभ्यास किया गया है, मैं विवरण करने वाला नहीं, लेकिन जैसे कि हार्ट अटैक किसको होने का संभव ज्यादा है? तो हार्ट अटैक की पर्सनालिटी का अभ्यास किया गया था लगभग दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात के समय में। यूरोप में लगभग 60,000 लोगों पर एक अभ्यास किया गया। उस अभ्यास को बहुत प्रचार किया गया। ये जो करने वाले थे फ्राइडमैन और रोजेनमैन, इन्होंने बताया कि टाइप ए पर्सनालिटी से पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, टाइप ए।
जो मटेरियलिस्टिक है, जो घड़ी के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, घड़ी की सुई को छोड़ नहीं सकते, जो आनंद मना नहीं सकते, जो किसी का भरोसा नहीं कर सकते और अपनी खुशी, आनंद, मनोरंजन सबका भोग दे करके जीवन में बढ़ना चाहते हैं आगे, उन लोगों को कहा जाता है टाइप ए पर्सनालिटी। आप अगर इंटरनेट पर टाइप ए पर्सनालिटी का वर्णन विवरण देखोगे तो आपको इसका संपूर्ण वर्णन मिलेगा। कैंसर किसको होने का संभव, इसके पहले एक्सीडेंट की पर चर्चा करना चाहूंगा। अकस्मात ऐसे लोगों में होता है जो अपनी जीवन की समस्याओं से ग्रस्त है और इससे छुटकारा नहीं पा सकते। दिवस रात उनके दिमाग में एक चक्कर चलता रहता है जीवन की समस्याओं का। जैसे कि नौकरी की समस्या थी, वो उधर छोड़ के आना चाहिए था मुझे, कुटुंब की समस्या थी, वो इधर छोड़ के नौकरी में जाना चाहिए था। तो एक जीवन, एक कमरा, एक मकान छोड़कर के जब तुम दूसरे मकान, दूसरे जीवन अथवा तो दूसरी अवस्था में जाते हो तो पहले वाली अवस्था को छोड़ना चाहिए, लेकिन आप उसको भी घसीट कर अपने दिमाग में ले आते हो तो आपका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड रहता है जीवन की सभी समस्याओं से। तो जैसे कि मैं वाहन चलाता हूँ लेकिन मैं पीड़ित हूँ, मेरे घर पे कोई समस्या, कोई झगड़ा छोड़ के आया, कोई बीमार व्यक्ति को छोड़ के आया, इसकी लगातार मेरे दिमाग में चिंता है, तो मैं बेध्यान बनूंगा और अकस्मात करूंगा। उन लोगों को होता है ऑक्सीडेंट ज्यादा। मैं एक आध बार ऑक्सीडेंट की चर्चा नहीं करता, मैं कुछ व्यक्तियों को जानता हूँ कि जो लोग रिपीटेड एक्सीडेंट, लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिनको 6-8 बार भी हो चुके हैं, कई लोगों को लगातार हड्डियां टूटती है। ऐसे लोग हैं जो अपने लिए बोल नहीं सकते, अपना अधिकार जता नहीं सकते और जो हिंसा में मानते हैं, जो अपनी अथॉरिटी के सामने विद्रोह करना चाहते हैं। कैंसर प्रोन पर्सनालिटी का भी अभ्यास किया गया है। वो लोग निष्क्रिय होते हैं, इमोशनलेस होते हैं, उनका बचपन बिना प्यार के बीता हुआ होता है, इनकी दिल में एक गहरी चोट होती है और ये इससे कभी बाहर निकल नहीं पाए। बाहर से ये भले दिखेंगे, बाहर से ये हंसते हुए दिखेंगे, लेकिन दिल में गहरी चोट छुपाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को एक संघर्ष, इनर कन्फ्लिक्ट, एक आंतरिक घर्षण होता है और वो घर्षण शरीर के कोषों में खराबी पैदा करता है। इससे आपको कैंसर होने का संभव है। अंतिम बात करूंगा, ब्रोंकियल अस्थमा। कई लोगों की इस समय अस्थमा की बीमारी है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। जो लोग अपना गुस्सा छुपाते हैं, गुस्सा जता नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, जिनको अपनी माँ का प्यार मिला नहीं या तो माँ का मरण हुआ जन्म के तुरंत पश्चात, तो मैं एक कवि का हमेशा उदाहरण देता रहा जो अस्थमा से पीड़ित थे, उर्दू भाषा के अत्यंत महान कवि रघुनाथ सहाय, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से कविताएं लिखते थे। अपने जीवन के छठे ही दिन इन्होंने अपनी माँ गंवा दी, माँ का प्यार मिला नहीं और 6 दिन के थे तो रो नहीं पाए। जब पता चला कि मेरी माँ तो मर चुकी है तब देर भी हो चुकी थी, ये 6 साल के हुए थे। अब रोना क्या होता है वो उनको पता नहीं था, तो जो रोना था वो हृदय ही हृदय में दब गया। अपनी नुकसान, माँ का लॉस ये समझ नहीं पाए और अस्थमा से पीड़ित इनका जीवन भी था। तो क्राई फॉर द लॉस्ट मदर, सप्रेस्ड एंगर, नर्वस पर्सनालिटी, एंग्शियस पर्सनालिटी, हाइपर इरिटेबल पर्सनालिटी, इन लोगों को अस्थमा होने का संभव है। तो ये कुछ बीमारियों का, कुछ सिम्टम्स का मैंने वर्णन आपको बताया। मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, प्रश्नोत्तरी करेंगे और अगली बार अंतिम लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको अपनी स्वास्थ्यता के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज तक मैं बीमारियों की चर्चा करता रहा, नेगेटिव बात काफी करता रहा, लेकिन ऐसी नेगेटिविटी से जीवन में कैसे बाहर निकले, अपने जीवन की दुख, दर्द और पीड़ाओं को कैसे भुलाए, कड़वाहट को कैसे दूर करें और स्वस्थ जीवन जिए, इसका चाबी मैं अगली बार बताने वाला हूँ। वो अंतिम लेक्चर रहेगा। यहाँ मैं रुकता हूँ, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहो। બહુ સરસ સરે આપણને અલગ અલગ નોર્મલ અને ક્રોનિક ડિઝીઝ વિશે વાત કરી છે. તો કોઈ મેમ્બર્સને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ચોક્કસ સરને પૂછી શકે છે.
સર આ આર્થરાઇટનો જે માન લો કે છે પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે પગના ઘૂંટણનો, તો હા પછી ઓપરેશન કરાવે છે તો તરત સારા કેમ થઈ જાય છે? તો પછી એ જો માનસિક કનેક્શન એનું હોય તો નેચરલી, કારણ કે તમે એવું છે કે શરીરની ખરાબી તો મિકેનિકલ જ છે, ભલે મનને કારણે થઈ, પણ મિકેનિકલ ખામી, હું દાખલા તરીકે મારું વાહન ચલાવવામાં કાયમ બેદરકારી રાખતો હોય, મારી બ્રેક ખરાબ થઈ જાય તો એ બ્રેક હું સુધારી દઉં તો બ્રેક તો સારી થઈ જાય ને, પણ પછી પાછી બીજી વાર થવાની છે એવું ભૂલતા નહીં ખરાબ, કારણ કે મારી ડ્રાઇવિંગ હેબિટ ખરાબ છે. બરાબર, તો મિકેનિકલ તો સુધારો ડોક્ટર કરી જ દે છે. આપણે ડોક્ટરો બધા મિકેનિક છીએ. અમને તમારી આંખો સારી કરતા આવડે છે, મોતીઓ દૂર કરતા આવડે છે, અમને તમારા મગજનું કેન્સર કાઢતા આવડે છે, અમને આંતરડામાંથી ગાંઠ કાઢતા આવડે છે, ઝાડા મટાડતા આવડે, ઉલટી દૂર કરતા આવડે, સંધિવા દૂર કરતા આવડે, પણ એ મિકેનિકલી, એક મિકેનિકની જેમ. પછી અમારી મર્યાદા આવી જાય. જો તમે કાળજી ન રાખી શકો તો તમને ફરી તકલીફ થવાની. ખરેખર ઘેરા રૂટીનમાં વિચારવા જેવો વિષય છે. હા બોલો બોલો સર. હા કિરણભાઈ, હાજી, મોટે ભાગે આવા જે રોગ થતા હોય છે એની અંદર આપણે જે આ સાયકોલોજીકલ જે આખી પ્રક્રિયાની વાત કરી, તો આપણા શું જે ડોક્ટર્સ પ્રેક્ટિસ કરનારા છે, જે એલોપેથીના, આયુર્વેદિક નહીં, એલોપેથીના જે લોકો પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, એમને આનું નોલેજ પૂરેપૂરું હોય ખરું? જરા પણ નથી. જરા પણ નથી. અમને મિકેનિકલ મેડિસિન શીખવાડવામાં આવે છે. અમને દવાઓથી, ઓપરેશનથી અને રેડિયેશનથી રોગ કેવી રીતે દૂર કરી શકાય, કે ઘાત કેવી રીતે કાઢી શકાય, કે નાની કરી શકાય, એ જ શીખવાડો અમને. કારણ કે મોડર્ન મેડિસિન જે મોડેલ પર રચાયેલું છે એ રેને ડેકાર્ટની કાર્ટેશિયન મોડેલ એ મિકેનિકલ મોડેલ છે. એ તમારા શરીરને, મારા શરીરને એક યંત્રની માફક જુએ છે, અને યંત્ર ખોટકાય ત્યારે એને તમારે કોઈ સાધનથી જ સાજું કરવું પડે. એટલે સુપરફિશિયલ દ્રષ્ટિકોણ છે. અમને આ ઊંડાણમાં શીખવાડવામાં નથી આવતું કદી. અને એટલા માટે તમે કોઈ પણ ડોક્ટરને ત્યાં જશો તો તમને સિરીઝ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવતા રહેશે. તમે ડોક્ટરો બદલતા રહેશો. બરાબર. તમને કહેવામાં આવશે કે આ ટેસ્ટ હાઈ આવે છે એટલે તમે આ દવા લો, અને છતાં પણ તમારો રોગ નહીં મટે તમે બીજા ડોક્ટર પાસે જશો, એ વળી કઈ ભરતો ત્રીજો ટેસ્ટ કરાવશે, અને ચક્કર કાપ્યા કરશો અને સાજા થશો નહીં કોઈ પણ. રાઈટ. તો આવા ઘણા રોગીઓ અને રોગો આપણે જોઈએ છે. મેં એક ઇન્દોરના બેનનો એક વિડીયો જોયેલો, સાંભળેલો. હા, કોઈ આધ્યાત્મિક સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા છે, કોઈ એમના ગુરુનું નામ, અને એમને પેલો આર્થરાઇટિસ નો પ્રોબ્લેમ હતો એમના એક ઓળખીતાના સાસુને. તો એ લોકોએ એવું કહ્યું, એ બેને એમને કહ્યું કે તમે તમારા સાસુ સાથે જે કડવાશ છે ને એ પહેલા બંધ કરી દો, અને એ રીતે એમની સાથે દુર્વ્યવહાર જે થાય છે ને એ તમે બંધ કરો, પહેલા આ કરીને પછી તમે મારી પાસે આવો. જે ડોક્ટર એ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા હતા એમણે એને એ સલાહ આપી. એટલે બેને જે રજૂઆત કરી, કહ્યું કે પેલી કે હું આવું કેવી રીતે કરી શકું, મારે તો એને ઉભાય બનતું નથી. એ રાંધે, એ વાતચીત કરે અને મારી ભૂલો કાઢે એટલે મારું મિજાજ જાય, એટલે મારે આવું બધું થયા કરે છે. એટલે એ બેને પછી ધીરે ધીરે આમના કહ્યા પછી એક પોતાના સ્વભાવમાં પરિવર્તન લાવ્યા. બહુ પ્રેમથી ધીરે ધીરે એ પોતાની સાસુ સાથે વર્તન કરવા લાગ્યા, અને પછી એને 1 મહિનામાં એમનો આર્થરાઇટિસનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ લગભગ 50% ઓછો થઈ ગયો. અને મળ્યા તો કે હજુ આ ચાલુ રાખો, એટલે 3 મહિનામાં તો એ ટોટલી આર્થરાઇટિસમાંથી મુક્ત થયા. આ એક પ્રયોગ એમણે થયેલો કહ્યો અમને. તો હું વિડીયો જ નહીં, હું તો પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ મારા જીવનમાં, હું હમણાં કોઈ વ્યક્તિની સારવાર કરું છું. 1 મહિનાથી એને રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ જોતો હતો, ચાલવાના ફાંફા પડવા માંડેલા. એમને સતત સલાહ આપતો રહ્યો કે તમારા સાસુને પ્રેમ કરો, તિરસ્કાર નહીં. એ તમારા મા બરાબર છે, સન્માનનીય છે, અને હૃદયથી તમે પ્રેમ કરશો તો તમે આપોઆપ સાજા થતા જશો. આજે સવારે જે મને મળવા આવ્યા અને બિલકુલ ઘણા સાજા નરવા હતા. તો તિરસ્કાર ભરી આપણને એમ થાય કે આ સાસુનો તો ટોટો પીસી નાખું, એને તો મારી નાખું, એને તો ઘરમાંથી કાઢી નાખું. જયારે થાય ત્યારે આ રોગ થવાના પછી. હા બરાબર છે, બહુ સાચી વાત છે. પણ જે ડોક્ટર અમને ખબર છે, અમારા ફેમિલી ડોક્ટર જે છે ને એ અમને નિરાશ નથી કરતા. એ
જ્યારે આજથી 85ની સાલની હું વાત કરું તો 5 રૂપિયા લેતા હતા એ વખતે 85ની સાલમાં. અત્યારે એમની 100 રૂપિયા ફી છે. 100 રૂપિયા ફી બી તમારી દ્રષ્ટિએ તો ઓછી જ કહેવાય કે આપણી દ્રષ્ટિએ અમદાવાદના બીજા પ્રેક્ટિસ પણ એ ફેમિલી ડોક્ટર હોવાને લીધે પહેલા તો સાયકોલોજીકલી આપણને ફ્રેશ કરી દે, એક હિંમત આપે અને પછીથી એ મેડિકલી કે જુઓ આટલું આટલું આ દવા લેજો અને કોઈ ચિંતા ના કરતા. એટલે મને લાગે છે કે એ સાયકોલોજીકલી એ ડોક્ટર જે તે પોતે એલોપેથીના છે, ડોક્ટર્સની પોતાની જે ટ્રીટમેન્ટ કરવાની ટેકનિક તો બરાબર સમજે છે, પણ એમને આ સાયકોલોજીકલી જે મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર લાવે છે પેશન્ટને હસીને કંઈક વાતચીત કરીને, એ બહુ અદભુત વાત છે. એટલે મને ગમી જાય છે કે આ ખરેખર આવા ડોક્ટર્સ હોવા જોઈએ જે આશીર્વાદ રૂપ બીજાના માટે બને. એટલે દરેક દર્દી સાથે માનસિક સ્તરે વાત કરવાની અને જીવનના અનુભવોની વાત કઢાવીને એમના માર્ગદર્શક, મિત્ર અને ફિલોસોફર તરીકે પણ વાત કરવી પડે. જરૂર જરૂર એમને ઘણો લાભ થાય. આપણે નાની નાની ટીપ આપીએ તો એમને સારું પણ ન લાગે. દાખલા તરીકે એને એમ કહું આ ગોળી જરૂર લેજો તમે, પણ સાથે સાથે તમે તમારા સાસુ સાથે માયાળું વર્તન કરજો, એના પર તમારી આપજો સુતા પહેલા, એમને ગમે નહીં પણ એ જરૂરી છે. એટલે લાગે છે કે ડોક્ટર પણ થિયોસોફીનો અભ્યાસ કરી લે અને પ્રેમપૂર્વક કેમ ભળતું એ વસ્તુ પણ થિયોસોફિકલ સોસાયટી શીખવાડે છે આપણને, જે આપણને ભ્રાતૃભાવની વાત છે, એકદમ સહૃદયતાની વાત છે, કરુણાની વાત છે, એ બધી જે શીખવાડે છે એ કદાચ ડોક્ટર્સના વ્યવસાયમાં બહુ ઉપયોગી બને. અમને ટીચિંગ લાઈનમાં તો ખબર છે, ટીચિંગ લાઈનમાં તો જે લોકો આપણા થિયોસોફીના જે કંઈ આપણા અભિગમો છે એને જો ધ્યાનમાં લાવીને વિદ્યાર્થીઓ સાથે વર્તીએ છીએ તો બહુ સારું પરિણામ આવેલું છે, એ તો મને ખબર છે. તો હું તમને તમારા અનુભવનો તમારી આટલી વાતમાં તો એક તારણ મને એ મળ્યું કે તમે જેટલા નીચલા સ્તરના કહેવાતા જનરલ પ્રેક્ટિશનર કે ફેમિલી ફિઝિશિયન પાસે જશો ને એ તમારો મિત્ર બનશે, પણ તમે સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે જશો ને એ તમને લૂંટવા સિવાય બીજું કઈ નહીં કરે. હા, સાચી વાત છે. તમારું કઈ નહીં ભલું કરી શકે, નહીં કરે. બહુ જ સાચી વાત છે. ખૂબ આભાર તમારો. આજે ખરેખર ખૂબ મજા આવી અને એટલો બધો રસ પડે છે કે હવે આમ તમને કન્ટિન્યુઅસલી દર મહિને હવે નહીં સાંભળીએ તો ચેન નહીં પડે એવું ફીલ થાય છે મને તો પર્સનલી. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આવતી વખતે બંધ કરવાનું છે ને છેલ્લી ના સર, ના સર, થોડું લંબાવજો, વાંધો નહીં, અમને વધારે લાભ મળે છે. ચાવીઓ જે થિયોસોફીની ચાવીઓ છે અથવા તો જે અધ્યાત્મ જગતની ચાવીઓ છે એવી ચાવીઓની મારે ચર્ચા કરવી છે અને એને લગતા થોડા અનુભવો પણ ટાંકવા છે મારે. જરૂર. બીજા કોઈ સભ્યને કોઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પ્લીઝ વેલકમ. સર, તમારી સેવાનો અમારે પર્સનલી લાભ લેવો હોય તો આમ તો હું ડિસ્કરેજ કરું એવું સારું નહીં, વાત સાંભળીને તમે પ્રભાવિત થઈ જાવ એ મને ગમે નહીં, પણ મર્યાદા સાથે તમે વડોદરામાં રહેતા હો તો હું 2 સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલો છું. દાખલા તરીકે એક ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી છે, બીજું આપણે એ રાવપુરા જનરલ પોસ્ટ ઓફિસ પાસે આવેલી છે, અને બીજી અંબાલાલ સારાભાઈ ફાઉન્ડેશન અને રેસકોર્સમાં બોમ્બે શોપિંગ સેન્ટરમાં આવેલી છે. તો એમાં તમે બપોરે 12 થી 2 માં નિયમિત હું મળતો હોઉં છું, ઓલ્ટરનેટ ડે. તો તમને એમ લાગે કે ખરેખર હું કઈ ઉપયોગી થઈ શકું તો પણ મારી વાતોથી પ્રભાવિત થઈને નહીં, કેમ કે હું પણ તમારી જેમ રોગી જ છું. ડોક્ટર સાહેબનો એક અનુભવ જે એમના એમએસના જે શિક્ષકો જણાવે છે કે ડોક્ટર સાહેબની લાઈન માટે લોકો બેસી રહેતા હતા કે સિંગલોડ સાહેબને જ બતાવો એમ. તમને આવકાર છે અને મારો ફોન નંબર લઈ શકો છો, પૂછીને આવી શકો છો, પણ કોઈ ચાર્જ નથી. હા, જે સંસ્થા તમને 20-30 રૂપિયામાં કેસ કાઢી આપશે એ ચાર્જ, એ સિવાય કોઈ ચાર્જ મારો હોતો નથી. ઓકે, ચોક્કસ સર, આભાર. તમારી વાતોથી બહુ અંજાઈ નહીં જતા. અમારા વિદ્યાર્થીઓને કહેતા નાકે દમ આવી જાય છે, બધાથી અંજાઈ જાય છે અને પછી એની પાછળ મધમાખીની જેમ બણબણવામાં આવે છે. ના, મારે ટિપ્સ લેવી છે, કારણ કે કફ મને ગળામાં ઓછો ને અહીંયા બધું આખું માથું જનરલી સોફ્ટ હોય, મારે બહુ જ કડક રહે છે એમ, એટલે મારે એની ટિપ્સ જોઈએ છે કે એકચ્યુઅલી આનું રીઝન શું છે. મને માથું એવું નથી ચડતું. તમારા સવાલના જવાબમાં અને સૂચનમાં એક 5 ટિપ્સ હું અત્યારે બોલી જાઉં. હા સર, પ્લીઝ. લાગે એવી. ભલે. જીવનમાં આપણને દરેકને સમસ્યા છે. એક વાક્ય સાંભળતા જજો, મનન કરતા જજો. આપણને દરેકને સમસ્યા છે. તમને છે, મને છે, કોઈ સમસ્યાથી બાકી નથી. બધાને સમસ્યા છે.
દરેક સમસ્યાનું કારણ છે. આ ભગવાન બુદ્ધની ફિલોસોફી પરથી હું બોલી રહ્યો છું. દરેક સમસ્યાનું ચોક્કસ કારણ છે. સમસ્યાનું કારણ હોય એટલે એનો ઉકેલ પણ છે, પણ એ ઉકેલ તમે પોતે જ એ સમસ્યાનો કારણ છો, પણ તમે પોતે એનો ઉકેલ નહીં બની શકો. સમસ્યાનું, જેમ કે આપણે વાત કરતા હતા હર્ષવર્ધનભાઈની વાતમાં કે સંધિવાથી પીડિત વ્યક્તિ સાસુ પ્રત્યે તિરસ્કાર લઈને ફરે, તો સમસ્યાનું કારણ એ છે, પણ ઉકેલ એ નહીં કાઢી શકે, કારણ કે ગુસ્સો છોડી નહીં શકે. એટલે સમસ્યાનું કારણ આપણે પોતે જ છીએ. આપણે એનું સમાધાન કરી શકતા નથી. કોઈ એ કરી શકવાનું નથી. એટલે કોઈ થેરાપિસ્ટ છે નહીં. આમ તો કોઈ થેરાપિસ્ટ તમને મને સાજા નહીં કરી શકે. કેટલીક પીડાઓ આપણે જીવનભર વેઠાડવાની જ છે. પીડામાં જીવવું, એના અનુભવમાંથી શીખવું, અને પડતા આખડતા બાળકની જેમ જેમ ચાલતા શીખીએ એમ આપણી પીડાઓમાંથી, બીમારીઓમાંથી આપણે જીવન સૂચક પાઠો મેળવીએ અને બીજાને કામ લાગે. તમારી પીડા તમે દૂર નહીં કરી શકો, પણ બીજાની પીડા દૂર કરવામાં તમે ચોક્કસ ઉપયોગી થઈ શકશો. એટલા માટે નિસ્વાર્થ સમાજ સેવા કરો અને તમારી બીમારીઓથી મુક્તિ મેળવો. પણ તમારી બીમારી તો તમને વળગેલી જ રહેશે, મનમાં કેટલા ઉડાડી જાય. યસ, ચોક્કસ. ઓકે, બીજા કોઈ સવાલ આઈ થિંક નથી. તો આવતા શનિવારની મિટિંગ્સની હું કરીશ. તો આ સાથે અમારી રોહિત લો. હા, પરવીનબેન, કંઈ કહેવું છે? પરવીન, તો સર્વે હાજર સભ્યો વતી અને અમારી રોહિત આ બધાનો મેં અભ્યાસ કર્યો છે, એટલે મારા માટે કોઈ પ્રશ્ન નથી. સોરી. પણ એક વસ્તુ છે કે કિરણભાઈ પાસે એકવાર ઉષાબેન પટેલની સાથે હું તમારી આગળ આવેલી ને એક બાબાને માટે તમને વાત કરેલી, ને તમે જે કહ્યું એ જ બરાબર સાચું પડ્યું. ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નોર્મલ. મારી મૂર્તિનું સ્થાપન કરવું જોઈએ વડોદરામાં બધાએ. હા હા, રાઈટ. ના ના, હું નમ્ર વ્યક્તિ છું અને હું અભ્યાસી છું અને મારાથી કોઈ દાવો નહીં કરી શકાય. પણ સૂચન હું તટસ્થતાપૂર્વક વ્યક્તિની સમસ્યામાંથી મારે કંઈ કમાવાનું ન થાય એવી રીતે સૂચન કરી શકું તો એનો રોગ સાજો થાય, બાકી તો ન થાય. ફી લેવાથી તો નહીં જ થાય. બરાબર. તો આભાર સૌનો. સર્વનો આભાર. થેન્ક યુ સર. અને આ સિરીઝ હજી લાંબુ ચાલશે તો બિલકુલ વાંધો નહીં, અમને તમારા જ્ઞાનનો લાભ મળતો રહેશે. ચાલો આપણે હકારાત્મક વાત કરીશું આવતી વખતથી હવે. હા સર, ચોક્કસ. સારી. ખૂબ ખૂબ આભાર સર્વે ઉપસ્થિત સભ્યોનો અને આપણા કિરણભાઈ શિંગલોત સાહેબનો આભાર. અને આ સાથે પ્રોગ્રામ્સને અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. નમસ્તે કિરણભાઈ. નમસ્તે. આવજો. 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 Now you're getting sugar.